السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک میں آئل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل 11ویں دن بھی اضافہ کیا ہے۔ آج جمعے کے روز اضافے کے بعد دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 90 روپے فی لیٹر کو عبور کر چکا ہے۔ وزرے کے ملک کے بہت سارے شہروں میں پیٹرول 100 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 31 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 33 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ اونچائی پر پہنچ چکی ہے۔ پریمیم پیٹرول پہلے ہی کئی شہروں میں 100 روپے سے بھی زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ اب عام پیٹرول بھی راجستھان کے شری نگر، مدھیہ پردیش کے انوپور جیسے 100 شہروں میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس اضافے کے بعد اب دہلی میں پیٹرول 90 روپے 19 پیسے اور ڈیزل 80 روپے 60 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح ممبئی میں پیٹرول 96 روپے 62 پیسے اور ڈیزل 87 روپے 67 پیسے، کولکاتہ میں پیٹرول 91 روپے 41 پیسے اور ڈیزل 84 روپے 19 پیسے، چنئی میں پیٹرول 92 روپے 25 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، حیدرآباد میں 93 روپے 78 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، ڈیزل 87 روپے 91 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ عام آدمی پر مار پڑی جا رہی ہے، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر ریاستی حکومت کئی امدادی اقدامات کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بری طرح سے متاثرہ ایوت محل ضلع میں 10 دن کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس پر جمعرات کی رات سے عمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امراوتی ضلع میں ہفتے سے ویکینڈ لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن پر ہفتے کی رات 8 بجے سے پیر کی صبح 7 بجے تک عمل ہوگا۔ ایوت محل کے کلکٹر نے بتایا کہ ضلع میں 1 فروری کے بعد سے کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر حکومت دوسرے مقامات بشمول اکولا میں بھی تحدیدات نافذ کر سکتی ہے۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے اور ان کے نائب اجیت پوار نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ مہاراشٹر میں 75 دنوں کے وقفے کے بعد جمعرات کو 5000 سے زائد کووڈ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ نئے کیسوں کی تعداد 5427 ہو گئی ہے۔ اس مدت کے دوران 38 اموات بھی ہوئی ہیں۔ درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان زین العابدین علی خان نے کہا ہے کہ معاشرے کے مفاد میں شادیوں کی تقاریب پر دھوم دھام اور شاہ خرچی کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ عرس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر اپنے پیغام میں زین العابدین علی خان نے کہا کہ یہ ایک سماجی برائی ہے جسے ختم کرنا چاہیے، اور اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ لڑکیاں کس طرح وقار کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ زندگی سادی ہونی چاہیے اور اس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ زین العابدین خان نے کہا کہ کئی لڑکیوں کے والدین اپنی محدود آمدنی کی وجہ سے شاہ خرچی نہیں کر سکتے، لیکن دھوم دھام کی شادیوں کے کلچر کی وجہ سے ایسے خاندانوں کے پاس اس طریقے پر عمل کے لیے قرض لینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا۔ اس سے غریب خاندانوں پر زبردست مالی بوجھ پڑتا ہے اور وہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض لڑکیاں اپنی پوری زندگی غیر شادی شدہ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے سے شادیوں پر شاہ خرچی سماجی برائی ہے اور اس برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں کسانوں نے جو زرعی قوانین کے خلاف کئی ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں، جمعرات کو 4 گھنٹے کا ریل روکو احتجاج منظم کیا، جس کے دوران ٹرین خدمات متاثر رہی۔ احتجاجی کسان تنظیموں پر مشتمل مشترکہ کسان مورچے نے گزشتہ ہفتے 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک گیر ریل روکو احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران ریلویز نے کہا کہ اس احتجاج کی وجہ سے خدمات پر معمولی اثر پڑا اور احتیاطی اقدامات کے طور پر عہدیداروں نے اسٹیشنز پر ٹرینیں روک دی۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شبنم نامی خاتون پر کئی افراد کے قتل کا الزام ہے اور وہ قاتل قرار دی جا چکی ہے۔ شبنم نے اپنے عاشق سلیم کے ساتھ مل کر سازش کے تحت 7 افراد کا قتل کر دیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ اور تحت کی عدالتوں نے شبنم اور سلیم کو سزائے موت سنائی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ سزا برقرار رکھی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ سے شبنم نے رحم کی درخواست پیش کی تھی، جو کہ مسترد کر دی گئی۔ 15 اپریل 2008 کو شبنم نے اپنے ہی خاندان کے 7 افراد کو اپنے عاشق سلیم کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ شبنم اور سلیم عرصے دراز سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے اور وہ شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ خاتون کا خاندان اس شادی کا مخالف تھا۔ شبنم نے اپنے افراد خاندان کا قتل کرنے سے قبل انہیں دودھ میں دوا ملا کر بے ہوش کر دیا۔ یہ تمام افراد بے ہوش ہونے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قتل کے اس واقعے پر اتر پردیش میں اس قدر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا کہ جن لوگوں نے اپنی لڑکیوں کے نام شبنم رکھے تھے وہ راتوں رات تبدیل کر دیے گئے۔ شبنم کے دیگر افراد خاندان نے عدالت کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کو پھانسی دینے کے لیے پون جلاد کو طلب کیا گیا ہے، جس نے گزشتہ سال مارچ میں نربھے کے مجرمین کو پھانسی پر لٹکایا تھا۔ متھرا کی جیل میں انہیں پھانسی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت ریاست آسام کو نظر انداز کرنے کی تاریخی غلطیوں کو درست کر رہی ہے۔ مودی نے کہا کہ مرکز اور ریاست میں بی جے پی کی
डबल इंजन हुकूमत ने रियासत और मुल्क के दीगर इलाकों के जोग्राफियाई सकाफती दूरी को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से कबल रियासत आसाम में फीकस आमदनी की शरह बुलंद थी, लेकिन 1947 के बाद इसकी तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तारीखी गलती को दुरुस्त करने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की ज़ेर-ए-क़यादत बीजेपी की हुकूमत ने शुरुआत की थी। अब बीजेपी की हुकूमत के तहत रियासत की तरक्की में इस्तेहकाम आया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो रियासती मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं, उन्होंने ज़िला शुमाली 24 परगना में एक मुहाजिर ख़ानदान का दौरा करते हुए इस घर में दोपहर का खाना खाया। अमित शाह ने बीजेपी कायदीन के साथ नारायणपुर देहात में सबरीता बसवास के घर गए। ये इलाका चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हल्के इंतखाब लोकसभा का हिस्सा है। यहाँ खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने पर मगरबी बंगाल में ख्वातीन को 33% से ज़्यादा का तहफ़्फ़ुज़ात देने का लुज़ुम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को 7वीं पे कमीशन का फ़ायदा देने का भी वादा किया। शाह ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए इस ज़िमन में ऐलान और वादे किए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने वार्निंग जारी की है कि बॉलीवुड के मुमताज़ अदाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के फिल्मों की नुमाइश और शूटिंग आइंदा महाराष्ट्र में रोक दी जाएगी। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार साबिक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर बार बार बयानात जारी करते रहे हैं। अब वो बिल्कुल खामोश हैं। सुलगते हुए अवामी मसाइल पर भी ये अदाकार मायना खैज खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और बीजेपी की ज़ेर-ए-क़यादत मोदी हुकूमत की जानिबदाराना अंदाज में तायद कर रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। दिल्ली की सरहदों पर गुज़िश्ता 3 माह से लाखों किसान एहतजाज कर रहे हैं। इन संगीन मसाइल पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का एक भी बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस की ज़ेर-ए-क़यादत यूपीए हुकूमत के दौर में इन दोनों अदाकारों ने आवाज़ बुलंद की थी। इनकी दोहरी पॉलिसी पर एहतजाज करते हुए इनकी फिल्मों की नुमाइश रोक दी जाएगी। मोदी हुकूमत के दौर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है और गैस सिलेंडर्स की कीमत 800 रुपये तक बढ़ा दी गई है। अवाम की जिंदगी अजीरन बन गई है। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ यानी आरएसएस मुल्क में अब तक मरतब की गई हिंदुस्तानी तारीख पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इस पर बहस शुरू करने की ख्वाहां हैं। आरएसएस का कहना है कि हिंदुस्तानी तारीख तंग नजरी के साथ मरतब की गई है और अब वक्त आ गया है कि इस पर नजरसानी की जाए। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत इस ज़िमन में एक नई किताब की रस्मी इजरा 21 फरवरी को अंजाम देंगे। इस किताब में तारीख नवेसी के उसूलों पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। अमेरिकी फौज के हजारों अहदेदारों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता अफसरान मुसलसिल इन्हें वैक्सीन से मुतालिक इंटरनेट पर मौजूद अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत कर रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के मेजर जनरल जेफ टेलीफर ने कांग्रेस को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इब्तिदाई आदादशुमार के मुताबिक फौज के 2/3 अहदेदारों ने वैक्सीन लेने पर रजामंदी जाहिर की थी और कहीं ये तादाद बहुत कम है। शहजादी लतीफ़ा के हामियों ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से अपील की है कि वो दुबई की शहजादी की रिहाई के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात पर दबाव डालें। दुबई की शहजादी लतीफ़ा के हामियों ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुतालबा किया कि वो इनकी रिहाई के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात पर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए दबाव डालें। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 35 साला बेटी शहजादी लतीफ़ा का कहना है कि इन्हें इनके बाप ने एक जेल नुमा घर में यरगुमाल बना रखा है। सऊदी अरब में नमाजियों में कोरोना की तशखीस पर मसाजिद की वक्ती तौर पर बंदिश का सिलसिला बरकरार है और नए केसेस सामने आने पर मजीद 8 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब तक बंद की गई मसाजिद की तादाद 87 हो गई है। वज़ारत इस्लामी उमूर की जानिब से नमाजियों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए अपील की है कि कोरोना की कोई भी अलामत महसूस हो तो टेस्ट के बगैर मस्जिद में आने से गुरेज करें और तमाम नमाजें घर में ही अदा करें। हुकूमत तेलंगाना ने महकमा तालीम में इस्लाहात के जरिए टीचर्स को जवाबदा बनाने हिकमत अमली तैयार की है। मौजूदा तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के अलावा सरकारी स्कूलों में मियार और नतायज में बेहतरी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। ज़राया के मुताबिक पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी में सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के साथ यकसा सलूक के बजाय दोनों के मामले में अलहदा फैसलों का इम्कान है। ज़राया ने बताया कि टीचर्स को सरकारी मुलाजमीन के मसावी मरात नहीं दी जाएंगी। साबिक़ में जब कभी PRC पर अमल किया गया, हुकूमत ने टीचर्स और सरकारी मुलाजमीन के साथ यकसा रवैया इख्तियार किया था, लेकिन TRS हुकूमत कारकर्दगी की बुनियाद पर दोनों में लकीर खींचना चाहती है ताकि सरकारी खजाने पर बोझ को कम किया जा सके। तेलंगाना में टीचर्स यूनियनों के रवैये से हुकूमत खुश नहीं है, क्योंकि टीचर्स अपनी समाजी जिम्मेदारियों से ज़्यादा अपने शख्सी मफादात की तकमील में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जिसका रास्त असर मियार तालीम पर पड़ रहा है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उर्स गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में अजमेर शरीफ को खुसूसी गिलाफ रवाना किया। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर ने आज मुस्लिम कायदीन और मजहबी शख्सियतों की मौजूदगी में गिलाफ मुबारक को खुसूसी दुआओं के साथ रवाना किया। तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली ख़ास तौर पर ज़रई शोबे की तरक्की और चीफ मिनिस्टर और अफराद ख़ानदान की दराज़ी उम्र और सेहत की दुआ की गई।
चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों के हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हजरत गरीब नवाज से वो गैर मामूली अकीदत रखते हैं और हुकूमत से खिलाफ मुबारक रवाना किया जाता है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक और हुसूल तेलंगाना के बाद अजमेर में अपनी हाजिरी का जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना पर हमेशा गरीब नवाज नजर करम रही है। पेद्दापल्ली में गुज़िश्ता रोज वकील जोड़े के कत्ल में मुलविस 3 खातियों बशमूल एक मुकामी टीआरएस लीडर को रामागंडम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नॉर्थ जोन वाई नागी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वुकला जी वामन राव और इनकी बीवी के कत्ल में मुलविस कुंटा श्रीनिवास और इसके 2 साथियों एस चिरंजीवी और के कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल की गई कार और हथियारों को भी जब्त कर लिया गया। नागी रेड्डी ने कहा कि कत्ल के बाद तीनों खातियों ने राह फरार इख्तियार करके महाराष्ट्र के सरहदी मुकाम वानखेड़ी चंदापुर में पनाह ली थी और पता चलने पर रामागंडम टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हैदराबाद को दुनिया के दरख्तों के शहर के तौर पर तस्लीम किया गया है। हैदराबाद दुनिया का वाहिद शहर है जिसको इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अर्बोर डे फाउंडेशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, उन्होंने हैदराबाद को दुनिया के दरख्तों के शहर के तौर पर तस्लीम किया है। ये सरसब्ज व शादाबी में इजाफे के लिए शुरू करदा हरिता हरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर सरसब्ज व शादाबी में बेहतरी के लिए हमारी कोशिशों को कबूल करना है। तारक रामाराव, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद व हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा सर्टिफिकेट को भी ट्वीट किया, जिस पर इस फाउंडेशन के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों की दस्तखत भी है। परिंदों के शायकीन ने हैदराबाद में नकल मुकाम करके आने वाले एक नए आम परिंदा शेलडक की हैदराबाद में मौजूदगी को रिकॉर्ड किया है। यहाँ इस परिंदे के दिखाई देने के साथ तेलंगाना में नकल मुकाम करके आने वाले परिंदों की जुमला तादाद 438 हो गई है। कॉमन शेलडक को माजी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में कभी नहीं देखा गया। हैदराबाद में एमएमटीएस और मेट्रो के कामयाब तजुर्बे के बाद लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के आगाज की तैयारियां की जा रही है। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, जो एचएमडीए के तहत इदारा है, इसने लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम को जेएनटीयू कोकटपल्ली ता फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तौसीह देने की हिकमत अमली तैयार की है। 28 किलोमीटर के फासले पर एलआरटीएस का तजुर्बा तेलंगाना में पहली मरतबा किया जाएगा। बताया जाता है कि यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 3 माह से एलआरटी सिस्टम के आगाज़ पर स्टडी का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में बहुत जल्द हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मौजूदा हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में सफ़र के लिए अवाम को सीढ़ियों से ऊपर ही मंजिल पहुंचकर टिकट हासिल करने के बाद ट्रेन में सवार होना पड़ता है। इसके बरखिलाफ इसके लाइट रेल में अवाम सिटी बस की तरह सवार हो सकते हैं। ट्रेन के मुख्तलिफ स्टॉप्स रहेंगे जिस तरह आरटीसी बसों के होते हैं। इस नए सिस्टम से अवाम कम वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक के मसाइल से बचाव में एलआरटी मुआवन साबित होगा। तेलंगाना हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से रियासत के मुख्तलिफ महकूमाजात में जहां पेपरलेस निज़ाम पर अमलावरी कर रही है, वहीं नकद लेन देन को घटाकर डिजिटल लेन देन को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है, जिसकी वजह से रियासत में स्मार्ट कार्ड के चलन में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इसी निज़ाम को तेलंगाना आरटीसी में मुतारिफ कराने के लिए ओहदेदार इक़दाम कर रहे हैं। इसी हिस्से के तौर पर आरटीसी बसों में गैर नकदी निज़ाम को फ़रोग़ देने की तजवीज़ है। फिलहाल हैदराबाद मेट्रो रेल में अमल होने वाले निज़ाम को आरटीसी बसों में मुतारिफ किया जा रहा है। इसके लिए खानगी इदारे से मुआहदा भी किया गया है। जिस तरह हैदराबाद मेट्रो रेल में सफ़र करने के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल लाजमी है, इसी तरह का एक कार्ड आरटीसी बसों में सफ़र करने के लिए लाजमी करार देने की तैयारियां की जा रही है। इन कार्ड्स को पेटीएम, गूगल पे और भीम ऐप के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से जायदादों की लीज से मुतालिक बुनियादी क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए पुराने शहर में 2 एकड़ 28 गुंटे इंतहाई कीमती वक्फ जायदाद भैंसों की डुड्डी के लिए लीज पर दी गई है। इस जायदाद को लीज पर देने के लिए ओपन ऑक्शन तलब नहीं किया गया और ना ही अखबारात में इलामिया और ग्लोबल टेंडर की तलबी की जहमत की गई। जामे अल हयात नूरिया वाक़े बंडलागुड़े की सर्वे नंबर 92 के तहत 2 एकड़ 28 गुंटे अराजी सफ़ायर डेयरी फार्म के मालिक मोहम्मद अब्दुल जब्बार को दी गई है, जो वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के भाई मोहम्मद उस्मान के करीबी रिश्तेदार बताए गए हैं। दरगाह हज़रत नूरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत बंडलागुड़े में कई वक्फ जायदादें हैं जिसको बोर्ड ने रास्ट मैनेजमेंट में ले लिया है। इस मसले पर दरगाह की साबिक इंतजामी कमेटी और बोर्ड में तनाज़ा चल रहा है। जिस अराजी को भैंसों की डोडी के लिए 28 अक्टूबर 2020 में लीज पर दिया गया है, इस अराजी पर पहले स्क्रैप का गोदाम था। तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत की 10,000 मुरब्बा गज अराजी को महज 60,000 रुपये माहाना किराए पर दिया गया है।
3 साल के लिए लीज पर देने से पहले कानूनी मुशावरत तक नहीं की गई और ना ही रियासती हुकूमत से इजाज़त ली गई, जबकि बड़ी जायदादों के मामलों पर लीज पर देने से कबल रियासती हुकूमत से भी इजाज़त ली जानी चाहिए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने लीज पर देने के अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद और अतराफ इकनाफ के अजला के अवाम को तफरीह के लिए मकबूल आम 45 रोज़ा कुलहिंद सनती नुमाइश का मार्च के दूसरे हफ्ते से आगाज़ मुमकिन है। बौसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक निस्फ स्टॉल्स के साथ 15 मार्च से नुमाइश मुनक़िद की जा सकती है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि कोविड-19 वबा की वजह से इस साल हस्ब रिवायत जनवरी में नुमाइश का इनेकाद नहीं किया गया। उमूमन नुमाइश का इनेकाद 1 जनवरी ta 15 फरवरी किया जाता है, मगर अब जबकि हालात मामूल पर आ चुके हैं, इम्कान है कि स्टॉल्स की निस्फ तादाद के साथ 15 मार्च से नुमाइश का इनेकाद अमल में आएगा। नुमाइश सोसाइटी को इस ज़िम्मन में हुकूमत की हतमी मंजूरी का इंतज़ार है।